আমরা আজ এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। ভারতবর্ষে এই প্রথম আমরা কোনো সাবজেক্ট পেয়েছি যা গভর্নমেন্ট রেগুলেটেড, এমন একটা সাবজেক্ট যা ক্রিপ্টো দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলা সাবজেক্ট, যেটা এর আগে কখনোই ভারতবর্ষের বুকে আমরা দেখিনি। এই প্রথম দেখছি, আমরা নতুনভাবে দেখব, নতুনভাবে জানব। আমরা অনেক সৌভাগ্যবান, আমরা সাথে কিছু মানুষকে পেয়েছি। একদিন একা একা চলা শুরু করেছিলাম এই পথটা, চলতে চলতে আজ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, স্বপ্ন দেখছি। সামান্য কিছু রোজগার আজও হয়েছে, আগত দিনেও হবে, বাট বিষয়টা তো সেখানে নয়। বাট যার জন্যে আজ আমরা এটা করতে পেরেছি, সেই শেখাওয়াত স্যার আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছেন সুদূর পুনে থেকে। এর জন্য একটা বড় ক্ল্যাপস হয়ে যাক। আমি একা একা চলতে চলতে এমন একজন মানুষকে আমার সাথে পেয়েছিলাম, যে মানুষটা আপনাদেরকে এই মুহূর্তে যতজন আপনারা বসে আছেন, অ্যাকচুয়ালি তার হাত ধরেই হয়তো বা তারা এসছেন। আমার হাত ধরে খুব একটা লোক এই মুহূর্তে হয়তো আমার হাত ধরে এসছেন এরকম কেউ নেই। আমার একটা উইংস, আপনারা একটা উইংসের একটা পার্ট আপনারা। এই প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু সেই মানুষটা। তাই সেই মানুষটা আর কেউ নয়, শতকুমার হাজরা। প্লিজ একবার কামিয়া। এই মানুষটার হাত ধরে আমি হাত ধরে নিয়েছিলাম এনাকে, এনার হাত ধরে আরো কিছু মানুষ, তার হাত ধরে এসেছিলেন প্রভাস বাবু, ওয়েলকাম স্যার। এনার হাত ধরে আরো অনেক মানুষগুলো, একটার পর একটা মানুষ এখানে এসছে। হয়তো আমরা সবাই সকলকে চিনি না, কিন্তু হঠাৎ করে টুকটুক করে এগোতে এগোতে একটা টিম তৈরি করে ফেলেছি আমরা। অ্যাট প্রেজেন্ট আমার টোটাল টিম মেম্বার্স 25,000। তার মধ্যে অনেক মানুষ আছে। আমরা রাতের পর রাত, দিনের পর দিন কিন্তু এই সাবজেক্টটাকে নিয়ে ভাবছিলাম। তা সবার প্রথম আমরা বরণ করে নেব আমাদের সেই সুদূর পুনে থেকে ছুটে আসা সেই ব্যক্তিত্ব, আমার জীবনের, আমার কেরিয়ারের আজ ভগবান যাকে আমি মানি, সেই রাকেশ শেখাওয়াতজিকে বরণ করে নেবেন শ্রী শতকুমার হাজরা। একটা ফটো তুলে নিন, একটা ফটো তুলুন। এটা একটু Thank you. আর আমি বিশেষ করে আরেকজন মানুষকে আমি বর্ণনা করে নেবো, তাতে শতকুমার হাজরা, যার হাত ধরে আজ আপনাদের এতগুলো মানুষ আমার সাথে জুড়েছেন। তা এখানে আমি একটা ছোট্ট করে আমার কথা কিছু বলতে চাই। আজকে আমাদের মধ্যে হাজির হয়েছেন শেখাওয়াত স্যার, ওনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই প্ল্যাটফর্ম আমাদের দেওয়ার জন্য। ওনার হাত ধরে গোলাম স্যার এসছেন, তাই গোলাম স্যারকে আমি এই মঞ্চে আমার কাছে হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে ওনাকে আমি পুরো স্তবক দিয়ে আমাদের মধ্যে ওনাকে আমি সম্বোধন করতে চাই। এই সম্বোধন করবেন আমাদের প্রভাস বাবু। আসুন। থ্যাংক ইউ স্যার। তাই আমাদের এখানে স্যারকে কিছু বলার জন্য জাস্ট একটা আপনাদের কাছে একটু কিছু বলবেন। এনার হাত ধরেই আজকে আমি এই মঞ্চে আসে, আজকে আমার কাছে এই আপনারা যতজন এসেছেন, আমার এনার অনুপ্রেরণায় আমি সেই জায়গা থেকে এসে আপনাদের সাথে একই সাথে আমরা মিলেমিশে আজ এই প্ল্যাটফর্মে, আজকে এমএসসি ব্লকের প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য মাস্টার স্ট্রোক স্বপ্নে, আজকে সেই স্বপ্ন দেশে আমরা সবাই ভাসতে চলেছি এবং অপরচুনিটি অফার এই জায়গা থেকে শেখাওয়াত স্যার আমাদের কাছে অনেক কিছু দেবেন। আজকে আমরা গোলাম স্যারের কাছ থেকে আমরা যে প্রেরণা পেয়েছি
সেই প্রেরণার অংশ গোলাম স্যার কিছু একটু বক্তব্য রাখবেন এবং সেটা শুনুন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। কোনো ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে, আমি এই প্ল্যাটফর্মে অ্যাকচুয়ালি নতুন মানুষ, আর আমার এই হাসান দা ইনি হচ্ছেন আমার সাথে একই সাথে পাশাপাশি এসে আমিও ডিস্ট্রিবিউটর করি, ইনিও অ্যাচিভ করেছেন ডিস্ট্রিবিউটর হোল্ডার, আর এর সাথে সাথে আরেকজন এনারও একজন ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাচিভ করেছেন। আজকে এই মঞ্চে আমরা একই পরিবারে একই মঞ্চেতে আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে হাসান বাবুকে পুরস্ত করতে আমাদের স্যার, যিনি আমাদের স্যার, তিনি হাসান বাবুকে এখানে অভিনন্দন সম্বোধন করছেন। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। বিষয়টা হচ্ছে একটু সময়ের কম থাকার জন্য খুব শর্ট টাইমে আমাদের অনেক কথা বলে শেষ করতে হচ্ছে, কারণ স্যার আমাদের মধ্যে অনেক মূল্যবান বক্তব্য, মূল্যবান ধ্যান ধারণা আমাদের পৌঁছে দেবেন। স্যার বাংলার কিছু বোঝেন না, একদমই বোঝেন না। আমরা কি বলছি উনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। উনি রেকর্ড করছেন, হয়তো কখনো বুঝে নেবেন। তা আপনাদের মধ্যে হতে পারে হিন্দিতে অনেকের অনেক প্রবলেম থাকতে পারে, আপনারা আমাকে পরবর্তীতে প্রশ্ন করবেন, আমি উত্তর দেব। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি যে কোনো ভাষায় বলতে পারেন, যে কোনো ভাষায় আমি আপনাদেরকে সেটা বুঝিয়ে দেব। तो सर आज आपके लिए कुछ कहना है कि महंगाई के ज़माने में खून के कीमत भी हो गए सस्ते, और हर कोई ढूंढ रहे हैं अपने अपने मतलब के रास्ते, और हम यहाँ आए कुछ अलग सोचने के वास्ते। इसलिए सबसे पहले नाचीज गुलाम के ओर से अब सबको प्यार भरे सलाम और नमस्ते। तो दोस्तों, हमारे सर आए हैं पुणे से। हम कुछ ऐसा चीज यहाँ से सीखना चाह रहे हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में। क्या है एमएसटी ब्लॉकचेन? हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, क्योंकि लगभग 4.5 साल पहले मैं यूरोप से ये सब्जेक्ट सीख रहा था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जाता है। क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, बेचते हैं। क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्रिप्टो करेंसी। हम लोग बिटकॉइन खरीदते हैं, इथेरियम खरीदते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। रखा है तो ब्लॉकचेन में रखा है। समझना है तो ब्लॉकचेन को समझना होगा। अगर ब्लॉकचेन को आप समझ जाओगे तो आप खुद एक बिटकॉइन लॉन्च कर पाओगे। बिटकॉइन कुछ अलग नहीं है। तो क्या है एमएसटी ब्लॉकचेन? वो हमारे महागुरु से हम सीखेंगे, और वो महागुरु नॉन अदर देन मिस्टर राकेश शेखावत जी। और एक बार जोरदार क्लैप। थैंक यू सर। मान सर आपके लिए है। थैंक यू गुलाम सर। दोस्तों नमस्कार। मजा नहीं है। मुझे लगता है कि दोपहर का टाइम हो चुका है और लगभग नाश्ता करके तो सब लोग आए ही होंगे, तो कम से कम उतनी आवाज तो आ जाए जितना नाश्ता करके आए। तो दोस्तों नमस्कार। यस, अब मालूम पड़ा कि हम कोलकाता में हैं, तो कोलकाता की आवाज पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी गूंजने जा रही है। तो आप अपनी आवाज को बुलंद रखें। दोस्तों मेरा नाम राकेश शेखावत है और मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं, और नियर बाई आगरा और मथुरा मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हैं, और मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है होम टाउन हाथरस, कभी अगर धोखे से सुना हो तो। मेरा कलकत्ता में ये सेकंड राउंड है। 5-7 साल पहले केवल इधर से गुजर रहा था, तो 4-5 दिन रुका था मैं, केवल इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम था कि कलकत्ता के अंतर्गत मेरा इतना बड़ा परिवार हो जाएगा, वो आज मालूम पड़ा है। और विशेषकर आपका इतना बड़ा प्यार देख करके मैं अपने घर को भूल चुका हूं। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, आपको बताया होगा, गोलम जी ने बताया हो या और भी हैं, उन्होंने आपको कुछ कह के बुलाया हो।
कि आज एमएसटी के बारे में आपको डायरेक्ट बताया होगा, एमएसटी के बारे में, और कोई मीटिंग होने जा रही है या मुलाकात होगी, इस तरह का आपको एक इंफॉर्मेशन दी होगी। बट एमएसटी है क्या चीज, उससे पहले हमें एमएसटी को समझने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा, तब ये हमारी समझ में आ पाए। एमएसटी एक कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही है, हम माने या न माने। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहेंगे तो हम फॉरवर्ड रहेंगे, अदरवाइज हम बैकवर्ड की तरफ रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए, मैं धन्य हूं कि मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य इसलिए है कि जब आप आपस में बात करते हैं तो मुझे ऐसा मानना पड़ता है मैं किसी दूसरे देश में पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं हिंदी के अलावा मैं कोई दूसरी भाषा नहीं जानता हूं, और हिंदी की एक भाषा से ही ये मैं काम कर रहा हूं, और मुझसे बड़ा काम आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप हिंदी भी जानते हैं, आप इंग्लिश भी जानते हैं, आप बंगला भी जानते हैं, आप उर्दू भी जानते हैं। तो इसका मतलब इतनी भाषाएं जब आप जानते हैं तो ज़्यादा क्राइटेरिया आपका बड़ा बना, तो इसलिए आप मल्टीपल बड़ा काम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। मैं कुछ एग्जाम्पलों से आपके लिए समझाऊंगा। तो आप 1.5 से 2 घंटे का टाइम लेके तो आए हैं? चलिए, 1-1.5 घंटे हम और आप साथ साथ रहेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। एमएसटी को छोड़ दो, लेकिन कुछ चीजें आपको रिलेट जरूर करेंगी। देखिए कहां कहां रिलेट करेंगे, इस पर चलते हैं। कि पहले जो होते थे, एक लैंडलाइन फोन होता था जो वायर से होता था, तार से जुड़ा हुआ होता था, घर के एक टेबल पर बैठा होता था या कोने में रखा होता, बुलाता था, हम उसके पास जाते थे और हाय हेलो करते थे, यही था। इसके बाद ये चेंज हुआ, किसमें? ये चेंज हुआ कीपैड में। कीपैड मोबाइल में चेंज हुआ, छोटा सा आता था, बटन से काम करते थे, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो क्या था, एक परिवर्तन था, और उस परिवर्तन को हमने एक्सेप्ट किया और हम बटन दबाते थे, बात करते थे। क्या काम करता था? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सामने वाले से बात करा रहा था, उसी में हम खुश थे। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, यानी उसको जेब में रख करके आप कहीं पे भी जाकर के बात कर सकते थे। टेक्नोलॉजी चेंज हुई। आगे चल के यही टेक्नोलॉजी कहां पहुंची? स्मार्टफोन पे। कहां पहुंची? स्मार्टफोन पे। जो हमारे और आपके पॉकेट में है, स्मार्टफोन है, ये इससे हमें कितना लगाव है। एक दिन अपनी छाती से इसे दूर रख के देखिए, खाना भूल जाएंगे। ऐसा क्यों है? फोन से लगाव नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, उसके बिना हम अधूरे हैं। आप 20 किलोमीटर जाएंगे और 10 किलोमीटर पे आधी रास्ता पे चल के आपको इस बात का ध्यान आता है कि मेरा मोबाइल रह गया। 2 व्यक्ति हैं, एक का मोबाइल रह जाता है और एक का खाने का टिफिन रह जाता है, और 10 किलोमीटर दूर से कौन व्यक्ति लौट के जाएगा लेने के लिए? खाने वाला लौट के नहीं जाएगा, मोबाइल वाला जाएगा, क्योंकि उसका जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। बिना उसके उसका काम नहीं चलेगा। क्यों? उसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर क्या है? स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बहुत कुछ इसके अंदर आ चुका है। आपकी बैंक इसके अंदर आ चुकी है। देखिए कितना समय हो चुका है आपको बैंक में जाकर के पैसे जमा करने में, न मालूम कब से नहीं किए। कितना समय हो चुका है बैंक से पैसे निकालने में, न मालूम कब से नहीं निकाले। ये टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, सारा कुछ बैंक आपके हाथ में है। और वो भी कोई सर वो भी 24/7, यानी 7 दिन 24 घंटे आप कभी भी पैसा मंगा सकते हैं, कभी भेज सकते हैं।
अब एक व्यक्ति है वो स्मार्टफोन का यूज करता है और एक व्यक्ति ऐसा है, नहीं साहब इस टेक्नोलॉजी पर मुझे तो भरोसा नहीं है, मैंने पैसा किसी को भेजा और किसी के में पहुंच गया, मैं तो इसका जिंदगी में कभी यूज नहीं करूंगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति इंतजार करेगा 10 बजे से लेकर के, और कहां तक का इंतजार करेगा? 4 बजे तक का। कहां के लिए? बैंक के लिए। इससे पहले न तो पैसा ले पाएगा और न पैसा जमा कर पाएगा, क्योंकि इसे टेक्नोलॉजी पर भरोसा ही नहीं है। और 3 दिन पड़ गई छुट्टी तो चौथे दिन ही वो जा पाएगा, क्योंकि इसे टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ में चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ में अगर नहीं चले तो काफी पीछे रह जाएंगे। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके हमें साथ में चलना चाहिए। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाले समय की जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार से लेकर के और प्राइवेट सेक्टर में हर जगह ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी है ये। ब्लॉकचेन 2 पार्टों से बना है, एक तो ब्लॉक और दूसरा है उसका चेन। ब्लॉक और चेन का मतलब, चेन को आप जानते होंगे, चेन क्या होता है? चेन होता है एक कड़ी होता है, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, उनको बोलते हैं चेन। और ब्लॉक का मतलब होता है बॉक्स होते हैं, और ये वो जो बॉक्स हैं इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉकचेन का क्या मतलब है उसको बताते हैं। कोशिश करना समझने के लिए, नहीं समझ में आए तो उसे आप नोट डाउन कर लेना, इस सेशन के बाद में आपके साथ में वो रूबरू करेंगे। अब ये क्या है? ये एक ब्लॉक है। ये क्या है? ये एक ब्लॉक है। ये क्या है? एक ब्लॉक है। ये क्या है? एक ब्लॉक है। इन ब्लॉकों को ये आपसे में जोड़ रहे हैं। ये ब्लॉक जुड़ गए एक चेन में, इसलिए इसको क्या बोला? ब्लॉकचेन बोला। इसका क्या फायदा है? इसका यह फायदा है, आपने सुना होगा अच्छी तरह से, सर्वर। बैंक किस पर चल रहा है? सर्वर पर चल रहा है। कंपनियों का डाटा कहां है? सर्वर पे है। देखा होगा सर्वर डाउन है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, 2-2, 3-3 दिन तक कोई काम नहीं हो रहा है। कोई साइट खोला, सर्वर काम नहीं कर रहा है, ये देखा होगा। आज धीरे धीरे करके ये सॉल्व होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सर्वर वाली कहां पहुंच रही है? ब्लॉकचेन पे पहुंच रही है, क्योंकि यहां मल्टीपल सर्वर यूज हो रहे हैं। सुना होगा कि सर्वर हैक हो गया। हैक होने का मतलब यह है कि हैकर ने उसके पूरे उस पर कब्जा कर लिया और डाटा को अपने तरफ ले लिया। यहां क्या है? ब्लॉकचेन और सर्वर में यह है कि इस ब्लॉकचेन पे दर्ज हुए किए हुए डाटा को कोई व्यक्ति हैक नहीं कर पाएगा, उसमें हैक नहीं कर पाएगा इस डाटा को। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम पे ये डाटा एक बार में बहुत सारे ब्लॉकों में दर्ज हो जाता है। हैक करने वाले व्यक्ति को एट ए टाइम पे एक बार में सारे के सारे ब्लॉकों को करना पड़ेगा, और ये अलग अलग सर्वर से कनेक्ट होते हैं। एक ब्लॉक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ये मिनट के अंदर ही डाटा एक साथ बहुत सारे ब्लॉकों में पहुंच जाता है। एक चीज। दूसरा क्या बेनिफिट है इस ब्लॉकचेन का? इस ब्लॉकचेन का यह बेनिफिट है कि इसके अंदर किए हुए डाटा में कभी भी एडिटिंग नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकता। इसका मतलब है हेर फेर का यह काम बंद हो जाएगा। इसीलिए सारी दुनिया कहां पहुंच रही है? अब ब्लॉकचेन पे पहुंच रही है। और ब्लॉकचेन में बहुत तरह की ब्लॉकचेन हैं।
अब इन ब्लॉकचेनों में किस ब्लॉकचेन पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, जो बहुत सारी ब्लॉकचेन पहले से चल रही है, क्या हम और आप उन ब्लॉकचेनों के पार्ट बन पाए? नहीं। क्या हम उनके शेयर पार्टनर बन पाए? नहीं। क्या हमारे पास मौका नहीं था? था, लेकिन किसी ने हमको जानकारी नहीं दी कि कैसे होते हैं। जो लोग इन ब्लॉकचेनों को एडॉप्ट कर पाए हैं, जो इन ब्लॉकचेनों को समझ पाए हैं, जो इन ब्लॉकचेन को पार्ट बन पाए हैं, वो लोग आज करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं। इथेरियम है, बीएनबी है, ट्रॉन है, सोलोना है, उन ब्लॉकचेनों के जो लोग बने, क्या वो पहले दिन से कमाना शुरू कर दिया? नहीं, समय लगता है। 1 साल का था, 2 साल का, 3 साल का। कुछ लोगों को तो यह था कि अब कुछ नहीं होने वाला, और कुछ लोगों को भरोसा था टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन पे, कि आने वाले समय में यही हमारा उद्धार करेगा, और उन लोगों का किया। इसकी बदौलत बहुत सारे लोग कहां पहुंच चुके हैं? कुछ दुबई भी शिफ्ट हो गया है, कहीं कहीं शिफ्ट हो गया है। बाहर शिफ्ट होने का मतलब बहुत बड़ा पैसा आना और रेगुलर पैसा आना, और उन ब्लॉकचेनों के माध्यम से उनके पास में पैसा आ रहा है। वो उस समय उसके पार्ट बने थे जब सही तरीके से शुरुआत नहीं हुई थी। वहां आप बनना चाहेंगे, अब मौके नहीं है, और आज आप लोगों के पास में एक मौका आया है। आप इस ब्लॉकचेन के बीइंग ए वैलिडेटर बन सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं, और अपनी देसी भाषा में समझ लें तो इस ब्लॉकचेन के आप शेयर ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा और क्या मिलेगा, इन सारी उस पर बात करते हैं, और आप नोट डाउन कर लेना। जो आपकी समझ में नहीं आए उसे आप पूछ लेना। चलिए चलते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, किस तरीके से, कैसे काम कर रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या मिलेगा, यहां से हम काम करेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, इस सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अब चलते हैं एमएसटी, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है। एमएसटी का पूरा नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नो सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, यानी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इससे एमएसटी बना है। ये शॉर्ट नेम है। ये क्या है? एक कंपनी है जो एमसीए के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसका आरओसी पुणे है, और इसके फाउंडर हैं मिस्टर महेंद्र सिंह धोमसे, सीईओ एंड फाउंडर, और डायरेक्टर एंड को फाउंडर कौन है? मिस्टर प्रमोद बोराडे। ये जो मैं बता रहा हूं, ये आपको कहां मिल जाएगा? ये आपको मिलेगा www.mstblockchain.com पे जाके आप खोलेंगे। एक बार जरूर खोलना mstblockchain.com वेबसाइट को, सारा कुछ मिलेगा। और उसमें से आप ये देखना, उसमें से डाउनलोड करना व्हाइट पेपर, और वो व्हाइट पेपर में सारा स्ट्रेटजी इसका मिल जाएगा। इसके अलावा एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स है, जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि कंपनियों को रजिस्टर करता है अलग अलग जगह से। जैसे ये पुणे से रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र से। आगे चलते हैं, इसके पास में
सरकारी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं उस पर बात करते हैं। इसके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो है पैन कार्ड है। इसके पास और क्या है, इसके पास एमसीए का होगा, पैन कार्ड हो गया, MEAC है। इसके पास और क्या है, इसके पास है GST है, और क्या है, SIC है। ये सर्टिफिकेट इसके पास में इस समय मौजूद हैं। टोटल गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट हैं। अभी तक के समय में, ये एक बात बता, अभी तक के समय में आपको शायद ही कोई ब्लॉकचेन मिले जिसके पास में इस तरह के डॉक्यूमेंट हों। किसमें काम कर रही है ये कर रही है INR के साथ। जब GST है तो इसका मतलब रुपीज में काम कर रही है। बाकी ब्लॉकचेन कहां काम कर रही हैं? बाकी ब्लॉकचेन USDT में काम कर रही है। आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। USDT में काम कर रही हैं जिसका कि गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं जा रहा, और यहां GST गवर्नमेंट के लिए जा रहा है। अब यहां करना क्या है, ये सब सारी चीजें तो चलो ठीक है। अब बात आती है हमें करना क्या है और मिलेगा क्या। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल को अगर हो सके तो साइलेंट पे लगा लें, फ्लाइट मोड पे लगा लें, स्विच ऑफ कर लें अगर पॉसिबल हो सके। आगे चलते हैं, यहां हमको किस तरीके से एंट्री मिलेगी और क्या करना पड़ेगा उसका बात करते हैं। आपको जिन्होंने भी बुलाया है वो आपके इंट्रोड्यूसर हैं। आप उनके रेफरल लिंक से सिंपल सा करेंगे रजिस्ट्रेशन। यहां देखिए कि आपका क्या खर्च हो रहा है। यहां करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्या क्या लगेगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, बाकी सिंपल सा आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। उसके बाद यहाँ होगा आपका eKYC, क्योंकि सारी चीज जेन्युइन तरीके से है इसलिए यहाँ eKYC होगा। एक व्यक्ति MST के अंतर्गत एक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। eKYC के बाद फिर क्या होगा, eKYC के बाद यहां आप एक वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्लॉकचेन पे जो भी प्रोजेक्ट रन होंगे उनसे आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो मिलेगा इसके मदर कॉइन में। तो इसलिए वो कहां जाएगा, आपके वॉलेट पे जाएगा। इस वॉलेट की जो 12 की हैं, 12 वर्ड हैं, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने। अगर ये 12 वर्ड आपके खो गए तो सारा कुछ आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो 12 वर्ड है इनको आपको नोट डाउन करके डायरी में आप लॉकर में रख दो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे कितना भी भरोसेमंद अपलाइन है, एक ही थाली में खाने वाले हैं, उनके साथ में भी शेयर मत करना। टू द पॉइंट की बात। जिसके पास ये 12 वर्ड पहुंच गए समझ लो वो उसका हो गया। वो चाहे तो पूरे आपके खाते को खत्म कर सकता है। आपका ATM कार्ड है, आप ATM कार्ड मुझे दे दो और उसकी पिन मुझे मालूम पड़ जाए तो उस पर अधिकार मेरा हो गया कि नहीं हो गया। मैं कभी भी निकाल सकता हूं, क्योंकि वो फिर से तो नहीं निकल रहा, वो किससे निकल रहा है, वो उस पिन से निकल रहा है। इसी तरीके से आपका अकाउंट किससे ऑपरेट हो रहा है, इन 12 वर्ड से हो रहा है। पासवर्ड से कोई मतलब नहीं है। नए मोबाइल में 12 वर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड बना करके वहां से फंड को निकाला जा सकता है। यहां वॉलेट कनेक्ट करते ही आपको क्या मिलेगा, आपको यहां मिलेंगे 50 MST कॉइन एयर ड्रॉप के रूप में। इसमें एयर ड्रॉप में मिलेंगे। इसका कुछ गया, कुछ देना पड़ा नहीं, ये आपको फ्री में मिला है। जब आपको फ्री में ये चीज मिली है तो क्या आप अकेले रखना चाहेंगे या और अपने नियर एंड डियर को दिलवाना चाहेंगे? हर व्यक्ति चाहता है
कि फ्री में जो मिल रहा है मैं भी अपने साथियों घर वालों को दिलवा दूं। सेम प्रोसेस आप अपने रेफरल लिंक से कराते हैं तो उनको जो आपको मिला है उनको भी मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, क्यों कराएं? भाई ये भी रहता है कि हम क्यों कराएं। इस बात के लिए आप इस जगह पे हैं, आपको ये बेनिफिट मिला है, आपने जितने लोगों को ये बताया है उतने लोगों को भी सेम बेनिफिट मिला है। अब इनको भी सबको कितना 50-50 सबको मिल गया, उसमें से 25% ये आपको मिलेगा इसको बताने का। अब ये 25% जो आपको बताने का मिलेगा, पहले भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अपने नियर एंड डियर को करवाते थे तो वहां रिवार्ड मिलता था, कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, कहीं 500 रुपए। वो आज भी है, आज भी स्टॉक मार्केट के जो भी एक्सचेंज है उन्हें आप इंस्टॉल करवाएंगे, अप स्टॉक है या इस तरह के एंजल हैं, इनसे भी आपको मिलते हैं। ये रेफर करने का मिलता है, प्रमोशन का मिलता है, एडवर्टाइज का मिलता है। तो यहां भी आपको 25% मिलेगा। इनका कुछ खर्च हुआ, कोई खर्च नहीं हुआ, आपका कोई खर्च हुआ, कोई कुछ खर्च नहीं हुआ, लेकिन 25% यानी 25% मतलब 100 पे 25 है और 50 सबको मिल रहे हैं। 50 में से 50 तो इनको मिलेंगे, लेकिन 12.5 आपको प्रत्येक व्यक्ति से यहां आपके अकाउंट पर पहुंच जाएंगे, पहुंचे होंगे लोगों को जिन्होंने भी करा। अब बात करते हैं इसका करेंगे क्या। जो आपको 50 मिले हैं इसको आप किसी भी वॉलेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। आज इसकी कोई कीमत है, आज इसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे पहले बीएनबी की कोई कीमत नहीं थी, ट्रॉन की कोई कीमत नहीं थी, सोलोना की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आज उनकी कीमत लाखों रुपए में पहुंच चुकी है। बिटकॉइन की कीमत लाखों में पहुंच चुकी है। तो आगे चल के इसकी कीमत बनेगी और आप इसको रुपए में चेंज करना चाहते हैं तो कब कम कर पाएंगे, ये आप मई से इसको जो चेंज कर पाएंगे। ओपन मार्केट में इस साल के लास्ट तक आने की संभावना है। अब चलते हैं कि इससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए बनना पड़ेगा आपको वैलिडेटर। और वैलिडेटर का मतलब यह है कि आप अपनी भाषा में ये मान चलिए, इस MST ब्लॉकचेन का आप शेयर खरीदेंगे और कितना शेयर मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कितना रुपए हमें देना पड़ेगा, इस पर इसके जो शेयर हैं कितने कितने पार्टों में जो शेयर बटेंगे और जा रहे हैं उन पर जरा सा बात करते हैं। देखिए जो इसके जो शेयर हैं वो नोट के रूप में, क्योंकि ब्लॉकचेन किस रूप में होती है, ब्लॉकचेन नोट के रूप में होती है। प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं तो यहां 6 फेज में ये जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ये देखिए कि हमें किस फेज में रहने पर कितना बड़ा फायदा होगा। 6 फेज हैं और प्रत्येक फेज में जो नोड हैं कितने कितने हैं। इसमें 7 नोड है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें 7 है। प्रत्येक में 7-7 नोड हैं। अब इनकी कीमत क्या है और कितने का है, कितने का कैसे कैसे मिलेगा, ये हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब इसकी कीमत है प्रत्येक की, एवरी में इंग्लिश में लिख रहा हूं, एवरी नोड कितने का है। यहाँ 7 CR का है, यहाँ 14 CR का है, यहाँ 21 CR का है, यहाँ 28 CR का है, यहाँ 35 CR का है और यहाँ 70 CR का है। एक नोट की कीमत पहले फेज में 7 करोड़ रुपए की है और 7 हैं, तो यहां देखा जाए तो मल्टीप्लाई आप ये कर दीजिए, इतनी कीमत निकल के आएगी इनकी, इतनी कीमत निकल के आएगी।
आगे बात करते हैं यहां से कि 7 नोड हैं, कौन सा चल रहा है और हम इस समय कहां पर हैं। तो इसमें से 7 में से 3 ऑलरेडी ब्लॉकचेन के लिए MST के लिए है, 3 पहले से MST के लिए है, यानी चौथा है। चौथे में देखा जाए तो पहला कम्युनिटी के लिए जो कि सोल्ड आउट हो चुका है, यानी बिक चुका है। अब चेयर चेंज कर लो। एक ये बिक चुका है, इस समय कौन सा चल रहा है, पहले शुरू करें। कौन सा चल रहा है, कम्युनिटी के लिए सेकंड चल रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरी ब्लॉकचेन में पांचवा चल रहा है। पूरी ब्लॉकचेन के अंदर देखा जाए तो कितने नोड हैं, पूरी ब्लॉकचेन के अंदर अगर यहां से देखेंगे तो 42 नोड हैं जो कि बिकने हैं। ये अभी क्या कीमत मिल रही है एक की, तो यहां से आप देखेंगे कि ये है। अब 7 करोड़ का एक व्यक्ति ले तो नहीं पाएगा, हाँ वो व्यक्ति ले सकता है जिसकी पॉकेट में 7 करोड़ रुपए होगा। लेकिन जो इसके फाउंडर को फाउंडर हैं, उन्होंने ये देखा, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए मौका मिले, जो व्यक्ति लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति ब्लॉकचेन के पार्ट नहीं बन पाए थे, आज MST के माध्यम से वो ब्लॉकचेन के पार्ट बन जाएं। इस बात के लिए उन्होंने क्या किया है, प्रत्येक के फ्रैक्शन किए हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़े, भिन्न होता है। कितने कितने किए हैं, प्रत्येक में 70,000 फ्रैक्शन किए हैं, हर एक में 70,000 फ्रैक्शन किए हैं। अगर यहां से देखा जाए तो ये 7 हैं, 7 के 70,000 के हिसाब से करेंगे तो हर ये बैठे। अब इनकी कीमत निकाल दें हम मैथमेटिक्स के अनुसार, तो एक यूनिट कितने की पड़ी, तो 70,000 ये फ्रैक्शन है और एक 7 करोड़ का एक है। और इस तरीके से यहां कितने हैं, मल्टीप्लाई 7 हैं और एक कितने का पड़ा, एक यूनिट जो पड़ी वो पड़ी यहां 1,000 रुपए की, 1,000 की पड़ी। और चूंकि जेन्युइन तरीके से काम हो रहा है, इस वजह से इस पर GST भी है, प्लस 18% का इस पर GST, 18% का GST भी है। अगर देखा जाए तो ये कितने का पड़ रहा है, ये पड़ा 1180 रुपए का। देखिए ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है कि ये लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे तो ये लगातार बढ़ रहा है। इस हिसाब से कीमत देखी जाए तो यहाँ एवरेज कितने का आ रहा है, 1,000 का आ रहा है। यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको 2,000 का मिलेगा, यहाँ पहुंचेंगे तो आपको 3,000 का मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 4,000 का मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5,000 का। आप ये देख पा रहे होंगे एक 1,000 रुपए जुड़ते हुए आ रहा है। अगले वाला कितने का पड़ेगा, यहां 1,000 जुड़ रहे हैं, लेकिन यहां सीधे पड़ेगा आपको 10,000 रुपए का। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप 1,000 रुपए का लेंगे या 2,000 का लेंगे बाद में, या 5,000 का लेंगे, या तब लेंगे जब 10,000। ये अंतर मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि ये वाला जो अंतर है उसका हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा जल्दी लेने पे। तो ये इस तरीके से कीमत बढ़ेगी, प्लस 18% GST हर एक के साथ में चलेगा। अब इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको परचेज कर लिया होगा, बहुत लोग विचार कर रहे होंगे परचेज करने के लिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ये काम हो जाएगा, हम तब परचेज करेंगे। अब इसमें अंतर बता देते हैं कि शुरू में लेने वाले लोगों के लिए और बाद में लेने वाले लोगों के लिए क्या अंतर रहेगा, वो यहां से अंतर बता देगा। और ये भी अंतर बता दे रहे हैं कि लेट होने पर कितना
लॉस रह सकता है या हमारे हाथ से कितना खो जाएगा। चलिए, अब इस जगह पे 3 लोग हैं और 3 लोगों में से कौन से हैं? एक तो वो व्यक्ति है जिसने इंस्टेंट जैसे ही मालूम पड़ा था तुरंत डिसीजन लिया और परचेज कर लिया। एक वो व्यक्ति है जो विचार करते करते आज की डेट तक के लिए इंतजार कर रहे हैं और आज मीटिंग में समझ में आया है और वो खरीदेंगे, या फिर उन्हें पहले से नहीं मालूम था लेकिन आज उन्हें मालूम पड़ा है तो आज खरीदेंगे। अब एक वो व्यक्ति है मालूम तो आज पड़ गया है लेकिन मैं तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक ये काम नहीं हो जाए। वो आगे के लिए जा रहे हैं तो क्या वो लॉस उठा सकते हैं? जरा यहां से देखते हैं। ये वाला व्यक्ति है, इसने मान के चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जनवरी 2025 में इसने एक फ्रैक्शन को परचेज किया। जब परचेज किया तो इसने कितना पेमेंट दिया? यहां सपोज करिए एक एग्जांपल, इसने यहां जीएसटी के तहत 1190 रुपए पे किए। ठीक है, 1190 रुपए। मैं बात कर रहा हूं मात्र एक यूनिट के लिए, एक फ्रैक्शन के लिए 1190 रुपए पे किए। इसको जो रिटर्न मिला वहां से नेटिव कॉइन का, रिवार्ड का, वो क्या मिल रहा है? यहां से उसे 20 कॉइन डेली मिलना। मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं, इससे ऊपर ही आते हैं लेकिन समझने के लिए मैं डेली आ रहे हैं। MST कॉइन इसे डेली आ रहे हैं। अब यहां से डेली आ रहे हैं। जनवरी से अब तक कितने महीने हो गए? 4 महीने तो हो गए। ठीक है, 4 महीने हो गए। यहां कलकत्ता में एक महीने में कितने दिन होते हैं? यानी कुल मिलाकर के आप ये मान गए कि कलकत्ता में इतने होते, बाकी दूसरी जगह कितने होते हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन हर जगह इतने ही होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, तो यहां कितने हो गए एक महीने में? 6 पॉइंट मंथली हो गए। बराबर है। थोड़ा गणित भी मेरा कमजोर है, बंगाली जानता नहीं हूं तो इसलिए है। नहीं हाँ, आप मेरे साथ में रहना। कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है गणित कैलकुलेशन में तो आप बता देना बिंदास होकर के। अब 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए यहां, तो यहां कितने हो गए? सही है। अब इस बंदे ने क्या किया था? जनवरी में परचेज किया, 1190 रुपए देकर के एक यूनिट परचेज कर ली, इस बात पे कि यार इतना 1100-1200 रुपए तो हम एक बार रेस्टोरेंट में बैठ जाते, खत्म कर देते। इस उद्देश्य से उन्होंने यहां परचेज कर लिया। हुआ क्या था? इसकी बदौलत आज की डेट तक उनके पास में कितने आ गए? 24 आ गए। एक व्यक्ति के समझ में कल आया था, उन्होंने क्या किया? इसकी जगह पे 1225 रुपए पे किया। यानी इसने भी वही काम किया और इसने भी वही काम किया जो कल वाला था। यानी अगर बात की जाए तो 26 तारीख वाला। कितना किया? 1200। सेम काम किया। अब इस वाले व्यक्ति को कितना आया? 20 कॉइन आए। उतना ही काम इसने किया, उतना ही इसने का। इसके पास में 24 और इसके पास 20 आए। अब एक व्यक्ति आज इस बात के लिए सोच रहा है कि जब ये बिकना शुरू हो जाएगा तब मैं खरीदूंगा, ये लिस्ट हो जाएगा तब मैं खरीदूंगा। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां आई और गई, रहता दिमाग में, क्योंकि हमारे साथ जो बीता होता है ना वो कभी निकल नहीं पाता। अब एक व्यक्ति सोच रहा है कि साहब मैं तो कब खरीदूंगा? मैं खरीदूंगा 27 मई को खरीदूंगा। जब ये बता रहे हैं उस समय कुछ हो जाएगा बताए हुए के अनुसार, तब मैं खरीदूंगा।
अब होगा क्या कि उस समय इस वाले व्यक्ति को हो सकता है कि 2500 रुपए देने पड़े। यहां पे भी अंतर आया और ये अंतर अब बहुत तेजी से यहां अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि मई में इसका P2P शुरू हो रहा है और जिन लोगों के पास में आ चुका है वो लोग अपने उसको बेच सकते हैं। अब ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है और ये अभी खड़े होकर के देख रहा है। उस समय 50% का स्टेक है, 50% का क्या है? स्टेक। क्योंकि ये किस पे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है POW पे काम कर रहा है। पहले POW होता था, आज ये काम कर रहा POS पे काम कर रहा है। इसे समझना पड़ेगा सर, प्लीज। मैं भूल जाऊंगा, मैंने जो रटा है ना आपको बताने के लिए, उसे भूल जाऊंगा मैं। तो ये POW POS को समझना पड़ेगा कि हम कहां हैं और हम किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हमको फिजिकल की तरह काम करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। या इस जगह पे हम POS पे हैं और POW होता क्या है? POW है प्रूफ ऑफ वर्क, एक ऐसा काम जहां व्यक्ति बैठ के करता है। जिसे सुना होगा आपने, माइनिंग कर रहा है, वह व्यक्ति करता है। अब इसके मैं एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल से आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। वो क्या एग्जाम्पल है कि आप बैंक में तो गए होंगे, पैसा जमा किया होगा। आपने अभी तक नहीं किया बैंक में जमा? किया है ना। जब बैंक में जाते हैं जमा करने के लिए तो हम पैसा किसको देते हैं? कैशियर को देते हैं। क्या वो जान पहचान का होता है? नहीं है, हम पैसा दे देते हैं। वो क्या करता है? गिनता है और आपके अकाउंट पर उतना पैसा चढ़ा देता है। लेने जाते हैं, सेम प्रोसेस है। वो हमारा जान पहचान वाला नहीं है और फिर भी हमको पैसा दे रहा है। गिनता है, उतने आपके अकाउंट से कम कर देता है और दे देता है। वो क्या कर रहा है? वो प्रूफ ऑफ वर्क का काम कर रहा है, वहां व्यक्ति काम कर रहा है। अब इस एक आई है टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ATM। ATM से पैसे निकाले सबने? अपने निकाले? अरे तो हाँ और ना हो तो बोल जाता। मुझे तो ऐसा लगा यार ATM से किसी ने निकाले नहीं है। अरे निकाले तो हाँ बोल, नहीं निकाले तो शर्म की कोई बात नहीं, मना भी कर सकते हैं कि नहीं निकाले। ATM मशीन में आप जाएं, एनी टाइम कभी भी आप जा सकते हैं और वहां से पैसा आप निकाल सकते हैं। इसीलिए ATM। हाँ। अब उस ATM मशीन से निकाले, वहां कोई कैशियर है? नहीं है। क्या आपके पास में कभी एक नोट ज्यादा आया है? नहीं। कभी नहीं ऐसा हुआ कि एक नोट ज्यादा आया हो या एक नोट कम आया हो। लेकिन फिर भी उस मशीन पर भरोसा नहीं है। नोट निकालने के बाद वहीं ये गिनते हैं। यानी निकालते निकालते आपको सालों हो गई और सैकड़ों बार निकाल चुके हैं, कभी गलती नहीं हुई है, फिर भी निकाल के जेब में रखेंगे, नहीं चले हैं, गिनते जरूर है। ये प्रैक्टिकली वाली बात है, होता है ऐसा। उस स्थिति में ये मशीन काम कर रही है, व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। सेम काम को जमा करने वाली भी मशीन है, उसे बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन, CMD, जमा करने वाली। यार कभी आपने बचपन में सोचा था कि एक ऐसी मशीन आएगी जहां कोई नहीं होगा और फिर भी हम पैसे ला सकते हैं? यार दिन की तो छोड़ दो, रात में ला सकते हैं। कभी आपने सोचा था कि हम पैसे को जमा करें और हमारा पैसा जमा हो जाए? कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज है। इससे कोई जुटला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये हमने, जब तक हम अपने आंखों से प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हैं तब तक ये विश्वास नहीं होता है। और बिल्कुल ये है। तो ये क्या काम कर रहे हैं? ऑटोमेटिक काम चल रहा है। ठीक इसी तरीके से
इस जगह पे जो माइनिंग का काम होता था, सेम काम आपका यहाँ ऑटोमेटिक हो रहा है। हमको आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये मशीन काम कर रही थी, इसी तरीके से आपके नोट काम कर रहे हैं। जो आपने परचेज किए हैं वो वैलिडेशन का काम कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। जो हमारे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं उनको पास कर रहे हैं, और उनसे आपको क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी है, POS जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, प्रूफ ऑफ स्टेक। इसीलिए यहां आपका फंड 50% स्टेक हो रहा है। जब 50% स्टेक हो रहा है तो इस जगह पे 2400 में से 50% गया तो कितना बचा? 1200। जब ये 1200 बचा, अब बीच वाले का कितना गया है? बीच वाले का कितना बचा? 10 बचा, क्योंकि उसका आधा क्या हो रहा है? स्टेक हो रहा है। अब उसमें आधे में स्टेक में क्या होता है कि इसके पास में कितना है? 10। ठीक है। अब इस स्थिति में, और इसके पास में तो अभी तो इसने बेचारे ने स्टार्ट भी नहीं किया। अब आपको कंपेयर करिए तीनों के अंतर्गत। अब अपने आप को रिलेट कर सकते हैं आप किस जगह पे हैं और कब आपको निर्णय लेना चाहिए। एनी टाइम तुरंत डिसीजन लेने के ये बड़े फायदे होते हैं कि मान के चलिए कि ये मई में P2P हो रहा है। मई में P2P हो रहा है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। एक व्यक्ति को जरूरत है, दूसरा व्यक्ति उसे दे रहा है। डिमांड क्रिएट हो रही है। जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक कोई भी कॉइन की वैल्यू 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। डिमांड का ही खेल है सब। अब यहां देखिए कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, श्योर नहीं है, ये रेट ऊपर नीचे हो सकता है। अब इस स्थिति में यहां P2P होता है। P2P क्यों हो रहा है ये बता दें। यहां 3 कंपनियां इस पे आ रही हैं, उनकी टेस्टिंग चल रही है, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस ब्लॉकचेन पे बन चुका है ऑलरेडी। वो क्या है? एक कंपनी आ रही है पेट्रोकार्ड की। जो पेट्रोकार्ड की कंपनी है वो क्या करेगी? मानिए चलिए कि 5000 रुपए का कैश और 5000 रुपए का MST कॉइन लिया और 12000 रुपए का आपको बैलेंस दे दिया। फिर समझिए 5000 रुपए का तो आपका कैश और 5000 रुपए जो आपको ये रिवार्ड के रूप में जो MST कॉइन आ रहे थे वो उसने ले लिए, और प्लस एडवांस में आपको 2000 रुपए और दे। कितना हो गया? 12000 रुपए। मैं एक एग्जाम्पल बता दूं। इसमें से क्या होगा? इसमें से आप 1000 रुपए मंथली का पेट्रोल डलवा सकते हैं। यहां क्या हुआ? आपके MST कॉइन यूज हो गए। MST कॉइन यूज हो गए। अब ये वाला व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति के पास 1200 है। अब ये वाला लेना है कार्ड, तो ये वाला व्यक्ति क्या करेगा? अड़ोसी पड़ोसी को देखेगा, भाई तुम भी बेचो तो तुम भी बेचो। 1200 तो इसके पास में है। अब मान के चलिए 1 रुपए का अगर बिका, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, हो सकता है 50 पैसे का भी हो सकता है 1.5 रुपए का भी हो, वो तो उसी समय लाइव रेट रहेगा साइड पे। अगर यहां 1 रुपए का रहता है तो इस व्यक्ति ने शुरू में स्टार्ट कर दिया था, इसके पास में कितने आ जाएंगे? 1200 रुपए। ये तो मैंने आपसे पहले पूछ लिया था कि गणित आपका सही है। अब यहां तो कोई अंतर पड़ा? 1 रुपए में बिका तो 1200 आ गए। इसने कितने लगाए थे? क्यों? क्योंकि इसने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया था। 1200 रुपए इसके आ गए 1 रुपए के हिसाब से। अभी कितना समय और पड़ा है इसके पास आने के लिए? 6 महीने हो गए हैं, 20 साल तक आएंगे। कैलकुलेशन के अनुसार 19.5 साल और पड़े हुए हैं इस वाले व्यक्ति के पास में आने के लिए। 19.5 साल और आएंगे, और आगे चल के इसका जो भी रेट होगा उस रेट के अनुसार उसका सेल होगा। इसका न मालूम ये कितने रुपए आ जाएंगे, क्योंकि यहां फिक्स नहीं है, कोई ROI नहीं है। इस पर जो 20 कॉइन आ रहे हैं, इसकी कॉइन की संख्या घटती जाएगी। लास्ट में 20वीं साल कितना आएगा? 0.00038 इतना आएगा लास्ट में साल में पर डे।
जिसको आज 20 आ रहे हैं, घट घट के कितने हो जाएंगे? वो इतने हो जाएंगे क्योंकि हर 2 साल पे इसकी हाल्विंग हो रही है। और जैसे जैसे नोट सेल होते जाएंगे उसका रेशियो घटता जाएगा। 19 साल और आने इस वाले व्यक्ति को इतना जितना उसने लगाया था, अगले महीने उसके पास आ गया। एग्जाम्पल ये व्यक्ति ने कल लगाया है, जनवरी में बताया था किसी ने, तब समझ में नहीं आया, कल लगाया है, 20 कॉइन आ गए, 10 ये बेच लेगा 1 रुपए के हिसाब से। अब इसके पास 12 है, इसके पास में कितने आए? 10 रुपए। अभी ये वाला व्यक्ति फिर भी विचार कर रहा है, ये देख रहा है कि पड़ोसी के बिक जाएंगे तब मैं लूंगा। तब तक क्या होगा? तब तक इसकी कीमत भी ज्यादा आ चुकी होगी। और इन लोगों के पास में जो आ चुका है, इस वाले व्यक्ति के पास में कितने आ चुके होंगे? 600 कॉइन इस वाले व्यक्ति के पास में तब तक आ चुके होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत बाद में हो। तो इसीलिए राइट टाइम पे आप एक डिसीजन लीजिए। और कुछ नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आपको 1 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के परचेज करने हैं। कम से कम इतना जरूर करिए, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए अगर आपकी क्षमता है 1200 रुपए की, तो 1200 रुपए का 1 यूनिट लेकर के इसे समझने की कोशिश करिए। पहले से समझिए, समझ में आता है तो आप इसको जो और ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो ये 1200 रुपए आपको आने वाली टेक्नोलॉजी को समझाते रहेंगे। आप समझना चाहेंगे तो। और इसके लिए जूम पे लाइव सेशन रहते हैं सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे। लिंक मिल जाएगा, आप अपने एक दूसरे से लिंक ले लेना और लाइव सेशन रहते हैं उनको अटेंड करना। तो ये रहता है समय का। अब बात करते हैं, ये सब सारी चीजें तो सही हैं, अब हमको अच्छा लग रहा है, अगर हम किसी को बताएं तो हमको क्या मिलेगा? बिना लालच के तो अपना बच्चा जैसे हम पाल रहे होते हैं, वो भी बिना टॉफी के दुकान से सामान लाके नहीं देता है, उसको भी लालच होता है। और ये लालच कभी खत्म नहीं होता है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति के अंदर वो लालच आज भी है और बढ़ गया है ना? तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं आगे। अगर हम इसको रिकमेंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इस पर चर्चा करते हैं। यहां एक कहावत है कि कर भला तो हो भला वाला सिस्टम है। जब आप किसी दूसरे का भला करने जाएंगे तो आपका अपने आप भला होता चला जाएगा। अब समझने वाली बात है कि यहां से किस तरीके से रहेगा। आप इस जगह पे हैं, आपने अपने आप को यहां रजिस्टर्ड किया है और अपने नियर एंड डियर को आपने इसके बारे में बताया। वो क्या करते हैं, आप जितने चाहें उतने लोगों को यहां से बता सकते हैं, किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। ये लोग जो भी परचेज करेंगे उसमें से जीएसटी काटने के बाद जो वैल्यू बची है, उस वैल्यू में से आपको क्या मिलेगा? उसमें से आपको मिलेगा 5%। 5% क्या मिलेगा? 5% का क्या कौन मिलेगा? नहीं, आपको 5% का मिलेगा INR, यानी इंडियन रुपीज मिलेगा, जो कि 1000 जैसे ही हो जाएगा तो आप कहां जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में। आप किसी व्यक्ति को अगर भेजना चाहेंगे इसमें से, आप किसी को भेज नहीं पाएंगे, सीधा आपके अकाउंट में आएगा, क्योंकि यहां जेन्युइन तरीके से आएगा और उस पर कोई एडमिन चार्ज है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं कटता। यहां मात्र 5% TDS कटता है, टैक्स कटता है, जो गवर्नमेंट को जमा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो वहां आपको ये रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें अंदर नहीं आते हैं तो अपनी फाइल दाखिल करेंगे इनकम टैक्स को, और जो जितना भी टैक्स कटा है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये बात इनकी भी समझ में आती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है जितना आपकी समझ में आई हो उससे ज्यादा आपने जिनको बताया उनकी समझ में आ जाए। हो सकता है वो उससे आपसे ज्यादा क्रिएटिव निकल आए, वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से लोगों को बता रहे हैं और लोग इनके साथ में बहुत तेजी से आ रहे हैं। क्या आपको यहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके लोग नहीं है।
केवल आपके लोग थे, वो आपने अपने साथ कनेक्ट किया, उनसे आपको मिल गया। लेकिन जैसे ही एंटायर ग्रुप में, पूरे ग्रुप में खरीदने वालों की संख्या 50 हो जाती है, फिर समझिए 50 हो जाती है, उस समय इनको जो वैलिडेटर बोलते हैं, जो खरीदते हैं, सर मार्कर दूसरा हो तो देख लो। यस सर, थैंक यू सर। 50 वैलिडेटर यहां होते हैं, तो उस स्थिति में आप हो जाते हैं यहां से डिस्ट्रीब्यूटर। आपको लेवल मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाला लेवल मिल जाता है। अब उस स्थिति में क्या फायदा, अब आपको जो फायदा मिलेगा वो बड़े ध्यान से समझना है कि क्या फायदा मिलेगा। आपको क्या मिल रहा था, यहां से ये 5% मिल रहा था, अब 5% की जगह डायरेक्ट से आपको मिलेगा 10%, सीधे डबल 10% मिलेगा। इसके अलावा कोई फायदा है? अब एक और फायदा जो सबसे बड़ा है, इससे भी कई गुना बड़ा फायदा है, वो कौन सा है? जहां से आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा था, वहां से आपको मिलेगा 5%। और किससे मिलेगा? अनलिमिटेड डेप्थ में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी परचेज करेगा, वहां से आपको 5% मिलेगा। 5% आपको वहां से मिलेगा, क्योंकि आप हो गए यहां डिस्ट्रीब्यूटर, और ये ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएंगे। आपके जिस समय ये क्राइटेरिया पूरा होगा, ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। क्या डिस्ट्रीब्यूटर आप ही रहेंगे? आपके ये साथ में आने वाले लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे? यस होंगे, वो भी होंगे, क्योंकि वो भी इसी बात के लिए आए हुए हैं। तो उस समय क्या होगा? उस समय 5 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। तो आपको एक टाइटल मिलेगा, वो है सब फ्रेंचाइजी। सब फ्रेंचाइजी, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, इस वजह से। जब सब फ्रेंचाइजी हो जाएंगे आप, तो उस समय क्या मिलना शुरू होगा? कुछ न कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। नाम दरोगा रखने से तो कोई मतलब नहीं है। यहां आपका जो आपको डायरेक्ट में 10% मिल रहा है, इसकी जगह पे अब हो जाएगा 15%। सोचिए कितना बढ़ गया। 5% से शुरुआत हुई थी आपकी, 15% पर पहुंच गए डायरेक्ट। ये लोग पहले वाले थे, अगर कोई व्यक्ति दोबारा भी खरीदेगा तो पहले 5% जिससे मिला था, उससे 15% मिलेगा। एक नया व्यक्ति आपने शुरू किया, वो खरीदेगा, उससे आपको 15% मिलेगा। 3 टाइम्स 3 गुना। और आपके नीचे जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हुए, जिनको 10% मिल रहा है, उनको 10% मिलेगा। आप 15% पे, तो जितने भी आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे आपको 5% मिलेगा, अनलिमिटेड डेप्थ से। यानी ये नहीं है कि आपका तीसरे लेवल, दूसरे लेवल या चौथे या 5वें पे जाके मिलेगा, 6वें 7वें से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तब भी आपको मिलेगा। कोई व्यक्ति दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, चेन्नई है, कहीं से भी खरीद रहा है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में 5% आ रहा है। LIC के एजेंट को इतना मिलता है जितना LIC का एजेंट, सॉरी बुरा मत मानना अगर कोई हो, वो ऐसे वक्त पे घुसेगा किसी के घर में, जो वो आदमी ड्यूटी पे होगा या काम पे गया होगा, उसकी पत्नी को वो समझा रहे होंगे कि देखो आज आपके पति बाहर हैं, खुदा न खास्ता लौट के नहीं आए तो आपको क्या मिलेगा। फिर वो समझाते हैं कि अगर आपने इतने पॉलिसी कर दी तो पत्नी, वो जब पति अगर ऊपर चले गए तो आपको इतना मिल जाएगा। अब उस पत्नी के दिमाग में आती है कि यार इतने लाख रुपए मिल जाएंगे तो इससे मैं इतना काम करूंगी, इतना होगा, हे ईश्वर तू मेरी जल्दी सुन ले। देखिए ऐसा नहीं है। वो किस काम के लिए कर रहा है? मात्र 5% के लिए कर रहा है। 2 घंटे समझा रहा है और 4-6 दिन घर पर जा रहा है, तब जाकर कुछ 5%। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके ग्रुप में कोई परचेज कर रहा है
फिर भी आ रहा है, आप घर से नहीं निकले हैं, आपको नहीं मालूम, लेकिन उसके लिए आपने पहले मेहनत की है और ऊपर वाला किसी की मेहनत को नहीं रखता, वो कहीं न कहीं जरूर देता है। आपने अपनी मेहनत कहीं दूसरी जगह पर की है, अगर वहां से आपको उसका रिवार्ड नहीं मिला है तो हो सकता है कि वो रिवार्ड आपको इस एमएसटी से मिल जाए। आगे चलते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन में लगे हुए हैं, नॉन क्वालिफाई हैं, उन लोगों पर 5% जाएगा, लेकिन आप 15% में इस बात का 10% आपको यहां से भी मिलेगा। क्या ये यहां एंड हो गया? नहीं। जब आप यहां डिस्ट्रीब्यूटर से सब फ्रेंचाइजी हुए हैं, तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर वो भी तो सब फ्रेंचाइजी होना चाहेंगे। अगर वो सब फ्रेंचाइजी होते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आप कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे यहां से फ्रेंचाइजी होल्डर। जैसे ही आप फ्रेंचाइजी होल्डर होते हैं तो आपको क्या मिलना शुरू होगा? आपको वो चीज मिलना शुरू होगी कि बहुत बड़ा अमाउंट आपको यहां बनता है, लेकिन करने पे 5 लोग आपके सब फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाते हैं, आप यहां से फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाते हैं। फ्रेंचाइजी होल्डर होने पे आप आ जाते हैं यहाँ 20% पे। 20% कहां से मिलेगा? 20% जितने भी लोग डायरेक्टर होंगे उनसे आपको 20% मिलेगा। यह जो आपके डायरेक्टर में पुराने लोग थे वो फिर से परचेज करते हैं, तब भी आपको 20% मिलेगा। इसके अलावा जो आपके सब फ्रेंचाइजी हैं, सब फ्रेंचाइजी कितने में होता है? 15% में। 15% उनको मिलेगा, लेकिन 5% आपको सब फ्रेंचाइजी से मिलेगा अनलिमिटेड डेस्क में। आगे चलते हैं कि जो भी आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर कितने परसेंट पे होते हैं? 10% पे होते हैं। आप 20% पे हैं, 10% उनके यहां जाएगा, 10% आपके पास आएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफिकेशन में 5% उनको मिलता है, लेकिन 15% आपको मिलेगा। ये सब सारी चीजें अनलिमिटेड है, किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं। यहां आप लायबिलिटी फ्री काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपने नहीं देखा होगा कि कहीं पे भी 0.5% आपका डेली का हो, 1% का डेली का हो, 2% का डेली का हो, 3% डेली का हो। ऐसा क्या आपने यहां देखा? नहीं। क्या आपने यह देखा है कि आपको यहां 10% मंथली मिलेगा, 15% मंथली मिलेगा या 20% मंथली मिलेगा? नहीं। क्या आपने यह देखा है कि कोई व्यक्ति यहां 1000 रुपए लगाएगा तो उसको 2 गुना मिल जाएगा, 3 गुना मिल जाएगा, 4 गुना मिल जाएगा? ऐसा देखा है? नहीं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने 1000 लगाए हैं वो यहां से 1000 से 10,000 भी कमाए, 50,000 भी कमाए, 1 लाख भी कमाए, क्योंकि पुराने एग्जाम्पल रहे हैं। आप प्योरली ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के नोट्स ये सेल हो रहे हैं, इसीलिए आप प्री लॉन्चिंग में हैं, इसका आप फायदा उठाइए। मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल देता हूं, जल्दी आने का क्या फायदा रहता है और लेट होने का क्या फायदा रहता है, क्या नुकसान रहता है, वो आप यहां से भली बात समझ सकते हैं। उस एग्जाम्पल को मैं बता के आया था, एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूं। देखिए, इस जगह पे एक 100 एकड़ की एक कॉलोनी बन रही है। फिर समझना, बाउंड्री हुई है एक 100 एकड़ की कॉलोनी के लिए। अब क्या यहां होना है? यहां फ्लैट बनने हैं, प्लॉट बनने हैं, लोगों के घर बनने हैं। अब ये खाली है तो कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। अब एक व्यक्ति ने क्या देखा, स्मार्ट व्यक्ति ने, जिसने जनवरी में परचेज कर लिया था, उस व्यक्ति ने स्मार्ट तरीके से यह देखा कि यार ये कॉलोनी बन रही है, आज यहां भीड़ है, कोई नहीं है यार, कभी न कभी तो कोई न कोई तो आएगा। इसलिए उसने एक प्लॉट यहां लेके डाल दिया। कितने में? 3 लाख में। दूसरा व्यक्ति देखता है कि यार एक प्लॉट बिक गया, मैं भी ले लूं। इसने लिया 3.5 लाख में, इसने लिया 4 लाख में,
इसने लिया 5 लाख में। एक व्यक्ति ये सोचता है कि इस कॉलोनी में तो अभी कुछ है ही नहीं है, मैं क्यों लूं। वो खड़े होकर इंतजार कर रहा है किस बात का कि इस कॉलोनी के अंतर्गत स्विमिंग पूल बन जाए, इस कॉलोनी के अंतर्गत हॉस्पिटल बन जाए, इसके अंतर्गत स्कूल बन जाए, इसके अंतर्गत मार्केट बन जाए, इसके अंतर्गत लोग रहना शुरू कर दे। सब ये घिर जाता है, भर जाता है और रेट इसका लगातार बढ़ रहा है। उस समय होगा क्या? उस समय उस व्यक्ति को जिसने यह 3 लाख में लिया था, आज उस व्यक्ति को यहां से 30 लाख में मिलेगा। बराबर है? सही है? ऐसे ही होता है। ठीक इसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन काम कर रहा है। उसमें इस समय प्री लॉन्चिंग है। अभी क्या है कि कुछ लोग ही आए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। 5वां टोटल नोड में से है। कम्युनिटी के लिए देखा जाए तो 5वां नोड चल रहा है। जरा सोचो, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप लोगों के लिए इतना बड़ा अवसर है, इतना बड़ा मौका है कि आप यहां से बहुत बड़ा बना सकते हैं। फास्ट पेस का 5वां चल रहा है, फास्ट पेस का 5 नंबर चल रहा है। जैसा दिखा 7 है। पहला फेज है, पहले फेज में 7 हैं। सुनो सुनिए, मैं बता रहा हूं 6 फेज हैं। प्रत्येक करना कितने 7 हैं। तो पहला फेज चल रहा है, पहले फेज में भी 7 हुए। 7 में से 3 तो स्टेक है ब्लॉकचेन के लिए, 4था बिक चुका है पब्लिक के लिए। हमारे आपके लिए 4था था, ब्लॉकचेन पर 4था था, लेकिन हमारे लिए वो पहला था। 3 को तो छोड़ दो, उनसे तो कोई मतलब नहीं, पहला था वो बिक गया। अब चल रहा है अगला, हमारे लिए दूसरा है और टोटल में देखेंगे तो 5वां है। क्लियर हो गई बात? इसलिए मौका भी बहुत पड़े हुए हैं। टोटल देखा जाए तो 1200 करोड़ के हैं, 1200 से ज्यादा करोड़ के हैं। 1200 करोड़ रुपए में यहां बैठे हुए जिन्होंने अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो भी रजिस्ट्रेशन करके और मात्र एक फ्रैक्शन पर खरीद के और इस पर काम करते हैं, तो हो सकता है कि ये 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में 1 CR भी कमा सकते हैं, जो कि लोग अपने होल लाइफ को नौकरी करके उतना कमा पाते हैं। आप साल 2 साल में यहां से कमा सकते हैं। ये सब सारी चीजें प्रूव हो चुकी है। क्योंकि मैंने कब शुरू किया था? मैंने नवंबर को शुरू किया था। मैं अपनी थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा मैंने कब शुरू किया है। मैं सिंगापुर की एक कंपनी में काम कर रहा था। 2 साल लगातार मैंने काम किया। उसने नेटवर्किंग पार्ट को बंद कर दिया। वो नाश्ता में लिस्ट होने जा रही है, उसने बंद किया था अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को बंद किया। उस दौरान में बहुत सारी कंपनियां चल भी रही थी और चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। जो यूएसडीटी में थी, डॉलर में थी, डॉलर में भी नहीं बोलेंगे, यूएसडीटी ही बोलेंगे। यूएसडीटी और डॉलर में अंतर है। ये डिजिटल डॉलर है। अब उसने बंद कर दिया। हम कहीं नहीं गए, सिर्फ ये देखते रहे कि कोई जेन्युइन कॉन्सेप्ट सही तरीके से आए और हम उस पर काम करें। हुआ ये कि किसी ने बताया कि एक कॉन्सेप्ट एक ऐसा आया है जो इंडियन ब्लॉकचेन है, जो कि INR में है और जीएसटी बिल के साथ में है। जीएसटी बिल सुन करके वो कान खड़े हो गए। यानी जीएसटी बिल एक जेन्युइन तरीके से दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं हम गवर्नमेंट की देखरेख में हैं जब जीएसटी मिल जा रहा है। मैं और मेरे एक साथी आगरा से हम 2 लोग कहां गए? पुणे गए, क्योंकि इसका आरओसी कहां है? पुणे है। पुणे 2 दिन हमारे को फाउंडर के साथ में लगातार मीटिंग चली है, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो भी काम करें वो एक जेन्युइन रूप से हो। इसे देखने के लिए हम गए, क्यों जरूरत हमें थी, इसीलिए हम गए। क्या देखा? वहां सारे एग्रीमेंट देखे, सारे सर्टिफिकेट देखे जो मैंने बताए थे। आज उन सर्टिफिकेट आज तो वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, पहले वेबसाइट पे नहीं थे। नवंबर में 1 नवंबर को रजिस्ट्रेशन किया था। 1 नवंबर को रजिस्टर करके 7 नवंबर को
गया पुणे मैं और साथी, देखा, हमने डिसाइड किया कि हाँ अब ये करने लायक है। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्ति मल्टीपल आईडी नहीं लगा सकता है। यानी उस तरीके से एक व्यक्ति एक ही लगाएगा केवाईसी के साथ में। बहुत सारी चीजें देखने के बाद में स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में आज अगर देखा जाए तो मेरे अकाउंट पे लग एक्यूरेट 300 तो डायरेक्ट हैं और टोटल कम्युनिटी की बात की जाए तो टोटल कम्युनिटी लगभग 67,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। और इनकम की बात की जाए तो इतने समय में 6 महीने हुए हैं, 6 मंथ की इनकम यहां से 37 लाख अकाउंट में आ चुकी है। व्हाइट मनी है, टीडीएस कट के आ रहा है, कितना भी आ जाए किसी बात की कोई चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि व्हाइट मनी। मेरे साथ में काम करने वाले लोग भी 1-1 लाख रुपए महीने पे भी कमाने वाले कई लोग हो चुके हैं। अभी प्री लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग वाला इवेंट तो होने वाला है, इसीलिए वो इवेंट एक धमाकेदार रहे और आपकी भी यादगार बने, इसीलिए एमएसटी ब्लॉकचेन एकेडमी ने एक अवसर दिया है उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। आपके नियर बाई जो भी एयरपोर्ट है वहां से आपके आने की जाने की टिकट करके 5 स्टार 3 स्टार जो भी वहां अरेंजमेंट होगा उसके होटल के सारे अरेंजमेंट एमएसटी करके दे रहा है। और ये 3 नाइट 4 डे रहेगा या 2 नाइट 3 डे रहेगी। आपको कुछ खर्च करना है? नहीं करना, सारा अरेंजमेंट है वीआईपी तरीके से। इवेंट भी है और आपके लिए ट्रिप भी है, दोनों चीजें हैं। मात्र क्या है, 5 लाख का टर्नओवर है। क्या ये टर्नओवर अपनी पॉकेट से करना है? नहीं, इसमें वो व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जिस व्यक्ति ने मात्र 1000 रुपए लगा करके एक यूनिट परचेज करके काम कर रहा है, वो भी व्यक्ति शामिल हो सकता है इसमें। क्या ये टर्नओवर आपके डायरेक्ट वालों के लिए है कि आपके जितने भी लोग प्रिंट में हैं क्या उन्हीं लोगों के लिए है? नहीं, इसके लिए आप पूरे ग्रुप से कर सकते हैं, पूरे ग्रुप से। यानी आप यहां हैं, जितना भी आपका ये ग्रुप है, इस ग्रुप से क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप से पूरा टर्नओवर आपका ये हो जाता है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इसकी। ये मौका है आपके लिए बहुत जबरदस्त, इसका फायदा उठा सकते हैं। यहां लोग काउंट नहीं है, बिजनेस कब तक करना है ये आपको करना है कंपनी की तरफ से। 5 तारीख है, 10 तारीख से 5 तारीख तक, लेकिन हम अपने ग्रुप के लिए आपके लिए इतनी सहूलत दे देंगे क्या उसके लिए 10 तारीख करवा लेंगे। और अगर आपका 4 लाख का भी टर्नओवर रहता है अब आप देखिए कि इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो वो जानकारी आप ले सकते हैं। मैंने जितना भी कुछ बताया है इसमें ऐसा तो है हो नहीं सकता किसी भी हालत में कि मैं एक बार में आपको सारा कुछ बता सकूं, और नहीं ये हो सकता है कि मेरी जगह पर कोई भी कितना भी एक्सपर्ट आ जाएगा तो आप एक बार में समझ जाए सारा कुछ। लेकिन हाँ, रेगुलर बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इतना भरोसा कर सकते हैं कि मैंने उस समय किया था जिस समय बताने के लिए कुछ भी नहीं था, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई भी इवेंट नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, और आज ये सब सारी चीजें होती जा रही हैं। आने वाले लोगों के लिए और आसान होता जाएगा। अब आसान होता जाएगा इस बात के लिए यह है कि मई में यूज के शुरू
हो जाएगी। अभी तक लॉन्चिंग में प्री लॉन्चिंग हो रहा है, ISO है। सुना फरवरी हाँ, वो बता देते कि वो क्या था कि एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का STPI है। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इसका एक डिपार्टमेंट है, एपेरी है। एपेरी डिपार्टमेंट क्या करता है? एपेरी डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन को कंडक्ट करता है, देखरेख करता है, जो कि MST ब्लॉकचेन भी इसी के गाइडलाइंस पे, इसी के अंडरटेकिंग चल रहा है। स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत शुरू हुआ है और ये STPI इसको लॉन्चिंग कर रहा था। इसने लॉन्चिंग के लिए किसको जिम्मेदारी दी? जिम्मेदारी दी इसने इंडियन ब्लॉकचेन हॉरिजन के लिए।